So today we are here at AIPL Joy District. This is one of the upcoming commercial projects coming up on main Dwarka Expressway. This is sector 88. तो अगर मैं सेक्टर 88 की बात करूं तो दिस इज द कमर्शियल सेक्टर. वैसे तो हर सेक्टर के अंदर कुछ रेजिडेंशियल और कुछ कमर्शियल का मिक्स होता है, बट अगर हम ओवरऑल बात करें जिसको बिजनेस डिस्ट्रिक्ट कहते हैं, सो देयर आर 3 कमर्शियल सेक्टर्स इन गुड़गांव. वन इज सेक्टर 29, सब लोगों ने देखा ही हुआ है वो सेक्टर, दैट इज क्लोजर टू DLF. देयर इज सेक्टर 114 which is again closer to Delhi, जहां से द्वारका एक्सप्रेसवे स्टार्ट होता है, and this is just in the center of both these commercial sectors. This is sector 88 on main Dwarka Expressway. So let us understand the location first. मेरे बिल्कुल सामने है multi utility corridor. This is a 135 meter wide road. On my left is Dwarka Expressway. So left Dwarka Expressway, just in the front multi-utility corridor, and on my right is the upper Dwarka Expressway. So this is kind of a 3-side open site which AIPL is making in 11.5 acres. So if I talk about AIPL stands for Advanced India Project Limited. This is a 35 years old company. They started their journey in 1991 and they have done 37 finest corporate landmarks in South Delhi, and they have been leased out to good companies. In Gurgaon, they entered in 2006 with their first project called Masterpiece Building on Golf Course Road. This is one of the finest building even today on Golf Course Road. Then there was a Celebration Mall which was done in Udaipur in 2011 and 12, and then this is one of the finest buildings of Extension Road AIPL Business Club which was done in 2013 and 14. This building has been leased out to a lot of corporates like British Airways, Lummus, KNN, Cargill and all. So top companies have taken this building on lease. Then they have also done some more commercial projects on Extension Road like AIPL Joy Street, which has been delivered and successfully running. And one of the other buildings, which is an IGBC Platinum certified office spaces, AIPL Autograph, is also about to get completed on Extension Road. This property is just opposite M3M Golf Estate and Trump Tower. And they have also done 2 more projects on Golf Course Extension Road by the name of AIPL Joy Gallery and AIPL Joy Street. Both the projects have also been delivered and they are successfully running right now. So they have done some more projects outside Delhi NCR like AIPL Dream City Khanna, which was a plotted colony, and they have also done the same Dream City in Amritsar and Jalandhar as well. So अगर हम लोकेशन की बात करते हैं तो ये जो प्रॉपर्टी है, दिस इज एज आई शोड यू, दिस इज ऑन द सेंटर ऑफ द्वारका एक्सप्रेसवे मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर, एंड ऑन द अदर साइड द अपर द्वारका एक्सप्रेसवे. एक तो ये कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो जाती है, प्लस इसके बिल्कुल डायगनली अपोजिट अगर आप देखेंगे तो ग्लोबल सिटी आ रहा है in 1000 acres. So 1000 acres ka global city is diagonally opposite to this particular project. So this project is in the very close vicinity of all the residential townships which are already delivered and people are staying there. And क्योंकि ये commercial sector के अंदर ही आता है तो यहाँ पे और भी बहुत सारी commercial activities आगे चल के होने वाली हैं. Like there will be lot of hotels that will be coming up. There will be some other commercial activities that will be happening here. और क्योंकि ये first project है अभी सेक्टर 88 का, तो ये प्रोजेक्ट जो है इसको एक तरीके से I'll say first mover advantage मिलेगा. Most of the brands will pick up this location first बिकॉज लोकेशन वाइज ये बहुत बढ़िया है और पूरे सेक्टर के अंदर पहला प्रोजेक्ट है जो डिलीवरी पे आएगा. एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मेट्रो स्टेशन जो सेक्टर 88 का है वो बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से, बिकॉज अभी जो नया मेट्रो रूट पास हुआ है विच विल स्टार्ट फ्रॉम एक्सटेंशन रोड एंड विच विल क्रॉस सेक्टर 88 और फिर उसके बाद आगे जाके इट विल गो टू मानेसर M9 सेक्टर एंड देन कनेक्ट टू पंचगांव. तो वो वाला जो पूरा रोड है वो वाला जो पूरा रूट है उसका वन ऑफ द स्टेशन इज सेक्टर 88 ओनली, और ये प्रोजेक्ट भी सेक्टर 88 में है. और क्योंकि वो मेट्रो स्टेशन मेन रोड पे ही आ रहा है और ये प्रॉपर्टी भी मेन रोड पे है तो काइंड ऑफ वॉकिंग डिस्टेंस हो जाएगा इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से मेट्रो स्टेशन. सो वन थिंग आई वांट टू टेल यू हियर, first of all, this is not a high street, this is not a mall, this is a hybrid model. So hybrid model mein what company has done is half of the mall is kind of a high street which is open to sky and half of the mall is kind of an hybrid which is kind of a AC mall जो proper होता है. ये इसलिए किया गया है क्योंकि बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो सिर्फ हाई स्ट्रीट प्रेफर करते हैं बिकॉज उनका जो फुटफॉल है वहाँ पे बेटर मिलता है, और बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे हैं जिनको सिर्फ AC मॉल चाहिए होता है. सो दिस इज अ मिक्स ऑफ बोथ दी थिंग्स. इसके अंदर हाई स्ट्रीट भी है और इसके अंदर काइंड ऑफ
AC मॉल भी है. So this will attract both the kind of customers and that will actually increase the footfall of this particular property. So 11.25 acres के अंदर one of the biggest mall of Delhi NCR जिसमें कि काफी सारे experiences होंगे. जैसे मैंने आपको बताया हाई स्ट्रीट भी है और AC मॉल भी एक हाइब्रिड मॉडल है. Plus then there are cinema screens also here. And if I talk about the placement of the shops, so ground floor and first floor is dedicated to pure retail. These are double height shops. So actually ये मॉल ऐसा है जिसके अंदर की सारी शॉप्स ही डबल हाइट हैं. नॉर्मली क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स जो हम रिव्यू करते हैं उसमें हम ये देखते हैं कि ग्राउंड फ्लोर शॉप्स तो डबल हाइट शॉप्स हैं फॉर बिगर शोरूम्स और फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर शॉप्स आर नॉर्मल हाइट शॉप्स. But in this particular project, whether we are buying a property on ground floor or a first floor or a second floor, all these shops, retail shops which we are buying, these are all double height shops. So as I was telling you that this is on the main road, so you can see here, this is that 150 meter wide multi-utility corridor. एक entry exit वहाँ से रहेगा for the project. There's another entry exit which is from this side. So there are two entry exits and drop-offs of this particular mall, and then ground floor, first floor shops are dedicated to pure retail. Second floor is for it's a mix of F&B and retail. Third floor is kind of an open-air restaurants and fine dining restaurants. You can see it from here, and the center part is the hybrid concept, which is the AC mall, and the rest of the area is like a high street market. These are cinema screens, and that's the central atrium where there is a big screen. All the events will be happening there. So I have just taken this clip of the construction going on. So there is a -3 basement, -2 basement and -1 basement that has already been done. Ground floor का काम चल रहा है. We are expecting the possession in 3 to 3.5 years time. अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट्स हैं. ग्राउंड फ्लोर पे अप्रोक्सीमेटली 1.5 से 2 करोड़ रुपए के अंदर हमारे को शॉप मिल जाती है. फर्स्ट फ्लोर पे भी अप्रोक्सीमेटली सेम प्राइस में हमें थोड़ा बिगर साइज का शॉप मिल जाता है. सेकंड फ्लोर पे वी हैव इन्वेंट्री स्टार्टिंग फॉर 1 करोड़ रुपीस. फिर अगर हम पेमेंट प्लान की बात करें, सो दे हैव अ 50-50 पेमेंट प्लान वेयर इन वी हैव टू पे 50% राइट नाउ, और जो बाकी 50% है वो स्प्रेड अक्रॉस 2 पेमेंट्स हैं. 25% सुपर स्ट्रक्चर पे आएगा और रिमेनिंग 25% क्लोजर टू पोजेशन आएगा. अभी वाला जो 50% है उसके ऊपर कंपनी इज गिविंग 10% का एश्योर्ड रेंटल. दैट मीन्स जस्ट टू टेक एन एग्जाम्पल, अगर हम कोई सेकंड फ्लोर की या फर्स्ट फ्लोर की शॉप लेते हैं, से अराउंड 2 करोड़ रुपीस की या मे बी 1 करोड़ रुपीस की, सो करंट पेमेंट वी हैव टू गिव 50 लाख रुपीस, जिसके ऊपर की 5 लाख रुपए का ईयरली रेंटल कंपनी इज प्रॉमिसिंग अस, एंड द रिमेनिंग पेमेंट इज क्लोजर टू पोजेशन. पोजेशन के बाद, बिकॉज दिस कंपनी इज वेरी गुड इन लीजिंग, वी आर एक्सपेक्टिंग कि ऑल दी शॉप्स विल बी लीज्ड आउट वेरी फास्ट एंड टू गुड ब्रांड्स, एंड वी विल गेट गुड रेंटल्स लेटर ऑन ऑल्सो. सो अगर हम ऑल एंड ऑल बात करें इस प्रॉपर्टी की, तो 11.25 एकड़ का एक मैसिव मॉल है, हाइब्रिड मॉल है. दोनों तरीके के कस्टमर्स यहाँ पे आएंगे और दोनों तरीके के ब्रांड्स भी यहाँ पे आएंगे, जिनको हाई स्ट्रीट भी चाहिए और AC मॉल भी चाहिए. प्लस सारी फैसिलिटीज इसके अंदर है. -3 बेसमेंट दी है सबसे पहले तो, विच इज वेरी गुड. लोकेशन की अगर हम बात करें तो बिल्कुल कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है और 3 तरफ से बड़ी रोड्स भी लगती हैं. अब क्रॉस दी रोड ग्लोबल सिटी भी है. सो ऑल एंड ऑल मुझे, और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये सेक्टर 88 जो है वो कमर्शियल सेक्टर है, और जो बाकी के 2 कमर्शियल सेक्टर्स हैं, सेक्टर 29 दैट इज ऑन द अदर साइड ऑफ गुड़गांव एंड सेक्टर 114 इज एग्जैक्टली ऑन द अदर साइड ऑफ गुड़गांव. दिस इज काइंड ऑफ इन द सेंटर. तो आगे चल के ये थोड़ा एक एपिसेंटर बन जाएगा. और क्योंकि इस पूरे कमर्शियल सेक्टर का ये सबसे पहला प्रोजेक्ट है, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जो फर्स्ट मूवर एडवांटेज है वो यहाँ पे हमें जरूर मिलेगा अगर हमारी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है. प्लस कमर्शियल की अगर हम वैसे भी देखें तो रेंटल यील्ड्स बेटर होती हैं एज कम्पेयर टू रेजिडेंशियल. हम एक स्मॉल इन्वेस्टमेंट अगर करना चाहते हैं और बड़ी इन्वेस्टमेंट रेजिडेंशियल की कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि इट विल बी बिग टिकट साइज, तो यहाँ पे हम एक छोटी इन्वेस्टमेंट भी करके स्टार्ट कर सकते हैं. रेंटल्स भी बेटर आएंगे और लॉन्ग टर्म रेंटल्स रहेंगे इसके अंदर. रेजिडेंशियल की लीज होती है 11 महीने की, यहाँ पे कोई भी ब्रांड आता है वो कम से कम 9 साल की लीज करता है. तो वी आर सिक्योर्ड फॉर अ लॉन्गर टाइम ऑल्सो अगर हम कमर्शियल प्रॉपर्टी बाय करते हैं. तो अगर आप कुछ इस तरीके से देख रहे हैं कि आप कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं एंड यू आर लुकिंग फॉर मल्टीपल ऑप्शंस, तो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपनी बकेट लिस्ट में जरूर रखना चाहिए और एक बार देखने आना चाहिए. एंड इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस अबाउट दिस प्रोजेक्ट, यू कैन कनेक्ट ऑन अस. वी हैव अ वेरी गुड इन्वेंटरी अवेलेबल विद अस. आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें एंड मेरी टीम आपसे जल्दी कांटेक्ट करेगी. आज के लिए इस प्रोजेक्ट के लिए इतना ही. नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे टू रिव्यू वन मोर गुड प्रोजेक्ट. थैंक यू सो मच टिल देन.